Good evening. Namaste, salam, everyone. Thank you for joining us this evening. As some of you know, India Foundation for the Arts is an independent organization. It's a nonprofit nationwide. It supports and implements projects in arts and culture. We have been around for about 26 years now. And during this time, we have made possible more than 600 projects across the country in various disciplines, languages, and the outcomes of these projects as books, films, exhibitions, archival material, websites, productions, seminars and conferences, pedagogic material has been out there in the public domain for everyone to see, learn from, enjoy. Now, other than supporting and implementing these projects, what we have tried to do is make possible events, get-togethers, presentations where the incredible work that our grantees and project coordinators do so that they can share that with larger public. And before March 2020, we would organize these events across the country in small cities with local partners, cultural organizations who are like-spirited, and we would invite the public to come and share an evening with us, share a cup of chai, and we could talk about the project that our grantees are doing. However, since the pandemic hit us, we have moved this entire process of sharing this information, sharing these projects online with you through these project showcases that now quite regularly we do once a month. So today we have a very special project. It's under our arts research program. But before I invite Tanveer, my colleague, to tell you a little bit about it, a few house rules. As most of you know by now, if you have any questions, if you have any things that you want to ask, there'll be time at the end, but you can put your questions in the Q&A box that you see at the bottom of Zoom. And if you're watching this on our Facebook live feed, then you can put your questions in the comments boxes below, and somebody will be there to let our speakers know what your questions are. But if you have a comment, you want to share some resource, you have a suggestion, you can use the chat box here, and again, the comments box under our the Facebook live feed that is going on right now. And if there are friends of yours who would like to join, but they did not register, then you can share our Facebook link with them right now, and they'll be able to listen to this conversation. So with that, I would request Tanveer Ajsi, who looks after our arts research program, to tell you a little bit about the program, a little bit about the project today, and our speakers who will be joining us shortly. Thank you so much. Thank you, Arundhati. Good evening, everyone. IFA प्रोजेक्ट शोकेस की आज की शाम में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज तनवीर अज्सी। मैं आर्ट्स रिसर्च प्रोग्राम को देखता हूं आईएफए में। आर्ट्स रिसर्च प्रोग्राम के द्वारा हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को लागू करने की कोशिश करते हैं जो कला और संस्कृति के माध्यम से ऐसी आवाज़ों को हमारे सामने लाने का प्रयत्न करते हैं जो समय के कोलाहल में या तो अनसुनी की जाती हैं या अनसुनी हो जाती। आज का प्रोजेक्ट ऐसी ही एक आवाज के नाम है, ऐसी एक आवाज को समर्पित है जिसने न सिर्फ दबने से इनकार किया बल्कि कोई और आवाजों को लोक कला के माध्यम से सामने लाने का काम भी किया। लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे। लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे ने लोक नाट्य के जरिए जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। मिलन चांपा नेरकर आज हमारे साथ हैं। He will take us through how, through Lok Natya, Anna Bhav Sathe challenged hierarchies of caste and class during 1940s and 1960s. He will talk about the pedagogy, aesthetics, and the influence of Lok Natya on the subsequent theatre movements in India, and the reasons that led to the decline of the popularity of the Lok Natya after Anna Bhav Sathe's untimely death in 1969. मिलन ने इस प्रोजेक्ट पे करीब 2 साल काम किया और उन्होंने उसके बाद जो इसका आउटकम रहा वो एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट है, and he's going to start working on the documentary very soon.
Milind is a Pune-based writer, researcher, editor, playwright, theatre director, translator, and a filmmaker. आज की शाम बहुत खास है दो रीजंस के लिए कि आज एक तो मिलिंद हमें अन्ना भाऊ साठे के लोक नाट्य और उनकी जिंदगी के बारे में बताएंगे, एंड दूसरा हमारे साथ संदेश भंडारी जी हैं, who is a Pune-based photographer and writer, and he has extensively worked on Tamasha art form, from which Loknatya was derived. Loknatya is a transmuted art form which was derived from Tamasha. आज की इवनिंग का जो ऑर्डर है, मैं थोड़ी देर बाद सबसे पहले संदेश भंडारी जी को आमंत्रित करूंगा, जो हमें लोकनाट्य का जो उसका बैकग्राउंड है, इसका आगमन कैसे हुआ, and what were the conditions, political, social, and cultural, that enabled Anna Bhau Sathe to derive this art form and create a medium of political and cultural expression. इससे पहले कि मैं संदेश जी को आमंत्रित करूं, मैं टाइटन कंपनी लिमिटेड का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, who underwrote this project. They supported the program for 2 years. Thank you very much. और अब मैं संदेश जी को निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात शुरू करें. संदेश जी. नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आईएफए के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है और इसी बहाने मुझे, मिलिंद जी के बहाने मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए मैं पहले आपका सबका आभारी हूँ। हाल ही में अन्ना भाऊ साठे की 1920 और 1921 के दरमियान पूरे जन्म शताब्दी पूरे महाराष्ट्र में जोश से मनाई गई। उनका जीवन संघर्ष और लोकनाट्य के ऊपर गंभीरता पूर्वक नजर डालने का काम मिलिंद चंपानेरकर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उसे आईएफए जैसे एक इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट्स जो सपोर्ट कर रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं विनम्रता से कहता हूँ। मुझे लगता है थोड़ी अन्ना भाऊ साठे की पूर्व पीठिका हमें समझ लेनी चाहिए। तो अन्ना भाऊ साठे जो है 1940s में लोगों के सामने आए, उससे पहले 50-60 साल पहले क्या हुआ था, या 2 साल पहले क्या हुआ था, तमाशा में क्या चल रहा था, ये अगर समझ ले तो अन्ना भाऊ साठे का काम और निखर के आगे आएगा। उनका 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वाटेगांव में उनका जन्म हुआ। अन्ना भाऊ 1969 में उनकी सिर्फ 49 की आयु में उनका देहांत हो गया। इतने अल्प आयु में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत असामान्य कार्य किया। 35 नॉवेल्स, 13 लघु कथाएं, 7 फिल्में, एक ट्रैवलॉग जो उन्होंने रशिया में किया था, 3 नाटक तथा 13 लोकनाट्य और बहुत सारी लावनी और पवाड़े। उनके साहित्य के बारे में बहुत सारे लिखा गया है, लेकिन उनके लोकनाट्य के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में ज्यादा कुछ हमें पढ़ने को मिलता नहीं। अन्ना भाऊ साठे समझने के लिए हमें थोड़ी उस वक्त की पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। महाराष्ट्र के कई गांव में साल में एक दिन ग्राम दैवत का उत्सव होता है। उसमें तमाशा के बिना उत्सव संपन्न नहीं होता। तमाशा की परंपरा कई सालों से महाराष्ट्र में चलती आ रही है और बहुत ही लोकप्रिय रही है। और उस लोकप्रिय परंपरा को संत एकनाथ जैसे लोगों ने भी अपने फॉर्म में अपना लिया था। इसमें परफॉर्मेंस करने वाले ज्यादातर कलाकार बहुजन समाज से आते थे, यानी महार, मांग, कोलाटी, गोंधड़ी आदि समाज से आते थे। सालों से तमाशा चलता रहा, लेकिन पेशवाओं के काल में उसका बहुत सारा अवमूल्यन हुआ और विविध से उसको रूप मिला। लेकिन जब महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने का प्रवेश हुआ, तब 1970 और 80s में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सत्यशोधक विचार आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस फॉर्म का इस्तेमाल किया और सत्यशोधक जलसे का उसको नाम मिला। 1930s की बात अगर हम करें तो उसमें कोल्हापुर के एक शायर, बड़े शायर भाऊ फक्कड़, वो अंबेडकर के और शाहू महाराज के काम से बहुत सारे प्रेरित थे और उन्होंने एक तमाशा के लिए नया नमन लिखा जो आगे चल के सब लोग गाने लगे। उनकी मतलब नमन में ऐसा था कि वो उनका काम गौरवान्वित करने का काम उस नमन में था। इसके आगे का काम अन्ना भाऊ साठे जी ने लोकनाट्य में किया और उनको फॉर्म लोकप्रिय हुआ।
यही आज के कार्यक्रम का विषय है और अतुल जी उसके बारे में बताएंगे। अन्नाभाऊ जैसे पिछड़े समाज के एक व्यक्ति जो मातम समाज के हैं, उनको शिक्षा में वंचित रहना पड़ा। वो निरक्षर रहे। वो स्कूल में जब गए तो उनको स्कूल के अंदर उस समय प्रवेश नहीं मिला था। तो भी साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी महान योगदान रही। मिलिंद चंपानेरकर आज अपने शोषण आधारित स्क्रिप्ट के बारे में कहते हुए हमें मिलेंगे। मिलिंद चंपानेर का परिचय तो तन्वीर ने बहुत सारा किया है। फिर मैं एक बात बताता हूँ, वो नाटक और पत्रकारिता में बहुत उन्होंने काम किया। उनका आकांत नाम का नाटक था, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर था और उसमें कुछ लोकनाट्य के कुछ घटकों को उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये मराठी में अच्छे राइटर माने जाते हैं, पोएट है। उनको साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया है और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का स्टेट अवार्ड उनको मिला है। मैं उनको अभी आमंत्रित करता हूं, उन्हें लोकनाट्य के बारे में शोषण के आधारित स्क्रिप्ट बनाने का प्रोजेक्ट करने की प्रेरणा कैसे मिली और इस प्रोजेक्ट का रूप क्या था, उसके बारे में प्रेजेंट करने की विनती करता हूं। Thank you, Sandesh. Vishwajit, can we go to next slide? Yeah. पहले आप सबका स्वागत, and I thank IFA and Sandesh for agreeing to have discussion with me on this topic, and welcome all of you who have joined here to share with us a few thoughts and about this presentation. ये जो पहली आप जो स्लाइड देख रहे हैं वो दिस इज द लेडी Vendudai Aware from village Madan, which is about 50 kilometers away in Amravati district, very much in interiors. And her son was a very good friend of mine, and he had seen my plays also. And when I was in Indian Express, we were just talking about theater and all that, and he told me about his mother, how she remembers Annabau Sate and all that. So I just went to her place and I spoke to her, and I was really shocked when she said, "Have you brought audio recorder? I can sing any number of songs, one after the other." And she just started singing, and I was really shocked to see this. She one person who had died in 1969, and this lady who is more than 75, just singing one song after the other. And so I just tried to know how it was. So then she told me when she was about 12, 13 years and all that, first election of provincial assembly were held, and Annabau Sate and whole Lal Bauta Kalapathak office had stayed at their place, and her father was also a communist leader over there. And then she was remembering everything. So I was just struck my mind how it can happen like this, and you can't see any traces here and there. So I just checked in some other villages also in Amravati, and I found that yes, it's very much there. And it's not simply some song or that Lokanatya or something, but it's coming with the ideology, and many people were associated with as activists also. So that's why it's so deeply grained into them. So I then went to some other places, other districts also, be it Parbhani and all that. And then I found that this is something, one must document. But I was not happy with the idea that I should do oral documentation of things. So I just found out, is there anybody who were contemporary to Annabau Sate and are still living and all that. So I contacted my friends from Mumbai, like Subodh More and all, and they took me to Vishwajit. Can we go to next slide? Yeah. So this is the lady Keshar Jagtap, alias Jainu Chand. Now her husband was right hand of Amar Sheikh, and this was the trio: Amar Sheikh, Annabau Sate, and D.N. Gavankar.
who had formed this Lal Bauta Kala Pathak. And she was very much active as a singer, lead singer. And there were very few women active on the stage that time. And she was also from Kolhapur. And when she had seen some performances of this Lal Bauta Kala Pathak, she just landed up at Mumbai and had said, I would like to do some tamasha like this, not which my father did like. So these were all spirited people, who were influenced by something, that Lokanatya had something to catch people inside. And then I became very confident because she was so, in fact, probably a lone witness to the whole thing of that generation. She's more than 80 now. And then she told me about the instrument they use, how that stage used to be just makeshift arrangement like, and how minimum lights used to be there. They used to use Petromax and or a single bulb, and how they used to perform, how people would come into thousand, how they would go for touring. And then I felt confident I can get first-hand information about this Lokanatya, and then I should go for documentary only. But I then realized that it would require a lot of research. And then I approached IFA, who kindly agreed to give me grant for this research-based script project. So my present project is research-based script. So for almost 3 months, I was going here and there, meeting people. Then I worked out some plan also how to do it, which I will come to later, how I chalked out the plan for the whole thing. But what I was sure about, I must go on meeting people like academic, because I was reading books also. Then I was knowing some authors also, but not much information I was getting about Lokanatya. As Sandesh said, there were lots of things written about his short story, 13 short story collections, and the novels, and his films based on his novels and everything, but very little about Lokanatya. So after searching for many books and all that, I shortlisted some books, and then I started meeting people, and then I found out some method also. Now I can shortlist people also, who can speak on what, on how I should take interviews and all that. Should we go to next slide? So with the help of some photographs, I could visualize, and with the whatever Kesarbhai and that Venutai shared with me, I could visualize what was that Lokanatya like. And you can see here Annabhau Sathe to left, then Amar Sheikh and D.N. Gavankar, the trio which shook whole Maharashtra. And then I decided how to go about it. And should we go? Here you can see there is hardly any light or something. There are no costumes or something. Whatever their dresses, these were their usual dresses which they would perform. And there is no latka jhatka and no event like thing. These are very lively things. Their language was lively, that I could see through their Lokanatya scripts also. Satyajit, Vishwajit, can we go to next slide? Yeah, and that was the scene you saw from 1950s, and this is from 2017. Now this, before I approached IFA, I had heard about one program that was to be held in village Pathri in Parbhani district. This was in 2017. And what made me go there, because I saw, I had heard in that village, Mahar and Matang, two communities were not on good terms, So for last 3 years, they were holding a program on 1st August, which is Annabhau's birthday, and then also on Ambedkar's birthday, to have unity amongst them. So they would have proceed with that some procession from Ambedkar statue to Annabhau statue 1 year, and in the rotation next year from Annabhau statue to Ambedkar statue. And whole day there used to be programs. So I reached there, and whole day I was shooting with a single man unit, like with my camera and tripod. So at night at 10 o'clock, this group of Kabir Kalam landed, and they performed there.
So exactly, I'm going to keep this also in the film as it is. You can see there is only one big bulb over there, no other lighting, nothing, minimum mics and all, and minimum instruments. And these guys, for 45 minutes, they just told about the whole life journey of Anna Bhau. So I shot it, and then it really thrilled me, okay, now I can make it very lively. And then I worked out how to go about it, and I went on meeting people a lot. This was in August 2017, means 5 years back. Should we go to next slide? And then, of course, whom we call Dada man in this Lokashair culture, this Sambhaji Bhagat. He had lots of things. So I then worked out how to have interview with him. I'll just explain later on how I worked out the whole plan of research. The next slide. Now, this Sambhaji Bhagat is who started his activity in late 1970s, but taking along the legacy of Anna Bhau Sathe in a way. But he was mainly known for his Pathanatya. Then this group, Janav Jagruti Manch, is from 1990s. This Tulsiram Jadhav. He performed lots of songs also for our project. But I'm just telling you, 50s, 70s, this is 90s, and again Sheetal Sathe and Sachin Mari, they started in 2000, but taking this legacy ahead in a way. And then how the next, I'm just giving you the feel of the flow of the script. Next slide, please. Yeah. And then Lokanatya, there was a decline in the whole popularity and the form also, and then street play took its place. So it is this photograph is of Jananatya Mancha, very famous play Aurat, and another one is Machine. So now you can get a hang of it, like what my script is going to be visually. Next slide. So rest of the things, Sandesh is going to grill me. He said, वो बोला मैं तुमको कुछ ये नहीं करूँगा, बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ. So let us have good discussion with him, and it will be a live discussion, I hope, and you will all enjoy it. Yes. Yeah, Sandesh. बहुत सारे सवाल नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे हम. सवाल क्या पूछूं मैं आपसे, आप सीनियर हो मेरे, लेकिन आपकी प्रेरणा के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह बताया. मुझे एक ऐसा लगता है कि दना गवाणकर, अमर शेख और अन्ना भाऊ, इन तीनों ने पूरे 20 साल महाराष्ट्र में बहुत ही 40 से लेकर 60 70 तक बहुत ही उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. बहुत सारी उनकी वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट भी चली और उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया. लेकिन पहले मुझे लगता है कि सबको बताया है कि आपके संशोधन की प्रक्रिया कैसे रही, थोड़ा उसको विस्तार से बताएं, क्योंकि आपने उसकी प्रेरणा के बारे में बता दिया है, तो लेकिन प्रक्रिया भी अगर आप बताएंगे थोड़ा और लोगों को अंदाज मिलेगा. Yeah. So as I said, after reaching out to people, पहली जो स्टेज थी उसमें identify those who can speak about it, who can perform like artists, academicians, because I didn't want to do it a very limited sort of a thing, कि कुछ plays दिखाओ या तो कुछ songs दिखाओ. डॉक्यूमेंटेशन करना है तो ज्यादा फुलर ये होना चाहिए. और कैन आई कम ऑन द वीडियो विश्वजीत? जी आप वीडियो पे ही हैं मिलन जी. ओके. हाँ. तो सभी सारा राउंडेड कुछ उसका रिसर्च होना चाहिए कि एक लोक कला माध्यम जो है वो इमर्ज कैसे होता है, और फिर वो इंसान जो है वो उसका लाइफ जर्नी क्या है, वो उसका एक्सप्रेशन कैसे इस तरह से होता है. उसको अगर ये करना है तो उसके कॉन्टेम्पररी जो है उनके साथ बात करनी पड़ेगी. एकेडमिक जिन लोगों ने कुछ एकेडमिक किताबें की है इस फॉर्म के बारे में या तो थिएटर के बारे में, उनके साथ बात करनी है. और जो एक्टिविस्ट है, एंड don't forget, activists do a great this thing, because helping hands जो एकदम
आए वो मेनली एक्टिविस्ट ही थे, शायद उनमें से कुछ आज इधर होंगे हमारे इसमें, जो अमरावती से थे या बम्बई से थे. तो they gave me lots of contacts and information, and I kept on meeting people. So first round was to meet people like academic, theater persons, even party leaders whose party was attached to that activity, because Loknatya was not only this thing. It was a part of the cultural political movement, and it was used as a tool for that cultural political movement. So there were many aspects to it. तो पॉलिटिकल लीडर्स भी महत्व के थे और एकेडमिक्स भी थे और कल्चरल एक्टिविस्ट भी थे जो उससे कनेक्ट रहे. तो उनकी एक लिस्ट बनाई और उनके साथ एक राउंड होने के बाद मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है एंड विच एस्पेक्ट दे विल फोकस ऑन. तो कुछ ओवरलैप नहीं होना चाहिए. And then I also went to Vategaon and spoke to people over there. And one जो उनकी साहित्य के बारे में जिसने बहुत रिसर्च बेस्ड ये किया है, वो जो बाबूराव गुरव करके थे, उन्होंने बड़ी किताब लिखी है और उन्होंने उस पर PhD की थी. And he was very much in touch with Annabhau Sathe right from childhood. And he was living in a village hardly 5-6 kilometers away from his Vategaon birthplace. तो ऐसे ये फर्स्ट स्टेज थी जिसमें आइडेंटिफाई किया लोगों को और शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद में कोरोना आया. सो फॉर 1 year देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग. तो थिंक दैट टेकन मोमेंटम और उसके बाद में सेकंड स्टेज शुरू हो गई. उसमें लोगों को मैंने क्वेश्चनर्स भेजे और उसके बाद में इधर वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके फिर स्क्रिप्ट उसमें फॉर्म की. ये होगी पहले. मुझे एक थोड़ी जानकारी आपसे लेनी है कि ये जो लाल बावटा कला पथक उन्होंने निकाला, आप सबको मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद तमाशा के ऊपर बैन लगाया था. तो उस वक्त अण्णाभाऊ ने एक अच्छी तरह से उसको कला पथक नाम दिया, लोकनाट्य नाम दिया और लाल बावटा कला पथक की स्थापना की. और आप मुझे थोड़ा सा इससे लाल बावटा कला पथक और उसके विस्तार के बारे में और लोकनाट्य फॉर्म में वो कैसे परिवर्तित हुआ उसके बारे में अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि उस वक्त की जो सिचुएशन थी, जो मिल वर्कर थे, उनका जो पैटर्नेज थे, जो पूरे महाराष्ट्र के बेल्ट से फार्मर रूरल आते थे और मुंबई में एज अ वर्कर, एज अ मिल वर्कर काम करते थे और शाम को वो उनसे बात करने के लिए उनके वॉइस अण्णाभाऊ की कथनों में, कवनों में या लावनी में आता था. तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए. वो जो बोला कि वाटेगांव से वो 1932 में बम्बई आए. सो ही हैड सीन एंड ही हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दैट. बम्बई में आने के बाद वहाँ पे कभी टेक्सटाइल मिल का बहुत ये था, हब था बिल्कुल. और फिर कुछ इधर उधर कुछ कुली और ऐसे छोटे छोटे मोटे काम करते करते बाद में टेक्सटाइल मिल में भी आ गए. एंड देन ही गॉट इन टच विथ ट्रेड यूनियंस हु वर लेफ्ट ओरिएंटेड. और वहाँ पे जो मेनली आरबी मोरे थे, उन्होंने उनको बराबर ये किया कि इस आदमी में बहुत सारे गुण हैं. सो इट वाज इन 1941-42, यू नो, ही स्टार्टेड राइटिंग बैलेड्स एंड ऑल दैट, एंड दैट टू ऑन सम सेकंड वर्ल्ड वॉर थिंग, यू नो, लाइक स्टालिनग्राड में उन लोगों ने कैसे, आज हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं लेकिन वो हिस्ट्री का वो एंड था जो स्टालिनग्राड में जो नाजी लोगों को रशिया ने हराया था तभी, और वो बहुत बड़ी जीत हो. तो उन्होंने उस पर बैलेट लिखा एक. तो डांगे वाज अ CPI लीडर, ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड एंड ऑल दैट. देन दे होल पार्टी एंड द ट्रेड यूनियंस, यू नो, गिव हिम लॉट ऑफ दिस थिंग, encouragement to develop this. And then RB More and some other people were instrumental in the whole thing. So they spotted Amar Sheikh, who was a very good singer, Annabhau D.N. Gavankar, who was a very good organizer and good at playing instruments and all, and Annabhau was good at writing and everything. So he brought those three people together, and in 1994 Lal Baota Kala Pathak was formed. At the same time, before that, IPTA was already doing something all over the country, and in Maharashtra Lal Baota Kala Pathak started that work. So it was used as a tool for raising issues relating to textile workers or maybe agriculturists and all,
and this whole Lal Bauta Kalapatak would go here and there. और इसी दौरान जो आप संदेश जी बात कर रहे थे, तो तभी लाल बावटा कलापतक को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी, इसलिए तमाशा पे बैन लगाया गया। तो बम्बई में एक बार ऐसे हो गया कि तमाशा नहीं तो लोगों की ये थी कि उधर तो बिल्कुल राइट हो जाता था अगर उन्होंने नहीं परफॉर्म किया था। तो अन्ना वो वाज सो स्मार्ट, यू नो, ही वेंट ऑन द स्टेज एंड ही सेड कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग तमाशा, वी आर performing Lokanatya. So, and then he just for half an hour, you just kept on playing some instruments, and then he started his Lokanatya and all that. This is Lokanatya, this is people's theater. This is not tamasha. We are not here to entertainment, but लोगों का प्रबोधन करने की है। एंड देन द लोकनाट्य का जन्म वहां से हो गया, और उसके बाद में उन्होंने 13 लोकनाट्य लिखे। वो अलग अलग इस पे अकलेची गोष्ट was the most brilliant this thing which is now also performed sometime by the people, and so that was about. And in a Sanyukta Maharashtra movement, you know, it played so major role in the whole thing, and probably that was the last movement as well as the plays performed in that. The people across all caste and class, you know, they were attracted towards this thing, and people used to come with bullock carts and all that, and they would come in the previous evening when at district places of in villages there. So that was the last moment when all caste and class people from all across all caste and class would come together irrespective of this thing. Later on, that never happened as far as movements are concerned or cultural movements are concerned. It was constricted to some particular caste or class or something like that. But here श्रमिक और ये सब सभी साथ में आ गए। ये एक अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की, वो उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो कांग्रेस के थे या बहुत सत्ताधारी थे, उनको ये महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अगेंस्ट थे, और लोगों के मन में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट की मंशा थी, और उस वक्त के राइटर, बहुत सारे सीनियर लोग सब उस मूवमेंट जुड़े, और इन्होंने, ये 3 लोगों ने तो ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ये बहुत कम बार ऐसा देखने को हमें मिलता है। मुझे ये कहना है कि 1940 से 60 तक अण्णाभाऊ का लोकनाट्य लोकप्रियता बहुत ही बुलंदी के ऊपर पहुंची। तो 70s के बाद उसका प्रभाव कम हुआ, और वो कम कैसे हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट रहा और प्रभाव कैसे कम रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मेरे डॉक्यूमेंट्री का जो कोर सब्जेक्ट है वो ये है कि इतनी समझो एक फॉर्म है जो डेवलप किया हुआ उन्होंने, कि वो डेवलप कैसे हो गया। यानी तमाशा में पहले तो एंटरटेनमेंट था, तो वंदन जो था तो पहले गणेश राय गॉड को ये करेंगे, तो वो उन्होंने निकाल दिया, और उन्होंने श्रमिकों के जो 2 हाथ है उसको डेडिकेट करते थे। वो या तो बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट सोशल रिफॉर्मर्स थे, या तो तिलक जैसे जो लीडर्स थे फ्रीडम फाइटर्स, उनको तो ये बहुत सारा एक ट्रांसम्यूट कर दिया उन्होंने ये। और फिर वगनाट्य कैरेक्टर्स उनके थे उस जमाने में ज्यादातर माइथोलॉजिकल या तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स रहते थे, या तो मिडिल क्लास ड्रामा रहता था। तो उन्होंने वो पूरा चेंज किया, और एक तरह से वो बड़ा रिवोल्यूशन ही था थिएटर कल्चरल मूवमेंट में। तो आई एम जस्ट कमिंग टू इट, एंड व्हाट हैपेंड, द प्रो जो एस्टेब्लिशमेंट था उनको सामना भी करना पड़ा, और रिप्रेशन भी, वो जैसे बैन वगैरह लगा, वो शुरू ही हुआ था। और ये मराठी एलिट जो कल्चर साहित्य का जो था, उन्होंने उसको ये करना कि ये प्रोपोगंडा थिएटर है, ये क्या साहित्य का ये करेंगे, यू नो, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, यू नो। नाउ आल्सो वी सी, यू नो, जो घेरा शुरू हो जाता है एक चीज को बदनाम करने का। अभी वो सोशल प्लेटफॉर्म में भी देते, लेकिन उस वक्त साहित्य के जो प्लेटफॉर्म पे उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज किया जाने का चीज नोइंगली और अननोइंगली हो गया था। अभी तो पूरा सब जो होता है नोइंगली होता है, तभी नोइंगली अननोइंगली हो रहा था। एंड ही वाज जस्ट, यू नो, he wouldn't be called despite being such a prolific writer, you know, for any literary festival also. And everywhere, like you can see P.L. Deshpande or Lata Mangeshkar, lots of records are there, everything is there.
but no, we can find no trace of these people, you know, although they perform so many songs and all that, you know. It's shocking. You can't find anything. Means I checked with Akashvani. I said, I have information that in 1965, 63, there are 2 interviews of this thing, and I want to listen to his voice. They said absolutely nothing is there. It's all gone, everything digitalized, but these are not there. So I checked with 2, 3 this Air India ka sab stations. So this is the halat, you know, the marginalization starts at this level. And there are lots of political reasons. Those are very complex, you know, that वो आप क्यूरियोसिटी से देखेंगे मेरे फिल्म कि वो क्या प्रॉब्लम्स थे, कि कैसे हो सकता है ऐसा. And then when it is not there, means in 1969, this 18 July 1969, Anna Bhau went, passed away, and within 1.5 months, Amar Sheikh also died in accident, you know. And then from 1970 to 70, all of a sudden there was absolute silence on this thing. And then there was emergency and जनरल टोटली हो रहा था कि पोस्ट इमरजेंसी फिर स्ट्रीट प्लेस का जमाना शुरू हो गया. But there were a few groups, you know, who took some elements from this Lokanatya. Although that Lokanatya was not replicated later on, some elements they were inspired, you know. So that is also very interesting. Then I spoke of with a lot of people like Sudhanwa Deshpande from Jananatya Mancha and all that. Then we know Safdar Hashmi, उनकी डेथ, उधर रिप्रेशन. तो ये सारा जब आगे का भी जो जर्नी है उसका मैंने ये किया है, और डिक्लाइन का भी पूरा विश्लेषण करने का जरूर ये किया है, क्योंकि अभी भी आप उनके नाटक देखेंगे तो अभी के वैसे आप दिखा सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल आर देयर एंड इन फैक्ट मल्टीप्लाइड, एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन those are more multiplied. So I approached a lot of academic people also who have written about it, and they have linked all those things. So there are interviews, and you will enjoy those interviews, and you will be, I'm sure, विचार प्रवृत्त हो जाएंगे आप इस फिल्म से. उम्मीद है मुझे. Yes, thank you. एक मैं जब चैट बॉक्स देख रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि नुक्कड़ नाटकों पर लोक नाट्य का कितना प्रभाव दिखाई देता है. ये लतिका जाधव है, उन्होंने कहा है, और मेरा भी यही सवाल है जो हमने डिस्कस किया था कि जो लोकनाट्य का नुक्कड़ पे प्रभाव और उसका कम होना और उसमें लोकनाट्य का प्रभाव बढ़ना, ये कैसे रहा, ये भी थोड़ा विस्तार से बताइए. नहीं जरा थोड़ा ये लोकनाट्य का प्रभाव कम होना और ये हाँ कम होना और उसकी जगह हाँ, और एक जो लतिका जाधव जी है वो भी एक सवाल पूछ रहे हैं, नुक्कड़ नाटकों पर लोकनाट्य का कितना प्रभाव दिखाई देता है, वो भी शायद आपने लिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा. You will be surprised to see कि when I inquired a lot over here and there, तो लोग बोले कि ऐसा कुछ नहीं कि स्टेज होता था गांव में और तभी करते थे, रास्ते पर भी वो नाटक शुरू करते थे. You can see a few photographs also, you know, अमर शेख और समथिंग, महाराष्ट्र का जो मूवमेंट था, तो इधर उधर जिला इसमें तो रास्ते पर ही उनका नाटक शुरू हो जाता था, तो स्किट्स होते थे वो, you know. So knowingly or unknowingly people must have got inspired about this, you know. तो गाने तो चाहिए, लेकिन वो पूरे जैसे इन्होंने गाने लिखे वैसे नहीं होते, लेकिन वो गानों का भी फॉर्म बदला, क्योंकि तभी मीडिया भी काफी डेवलप हो गया था, फिल्म मीडियम आया था और कमर्शियलाइजेशन इस फॉर्म का हो गया था. वो लोग फिल्मों में देख रहे थे, फिल्मों में तमाशा बहुत मराठी फिल्मों में दिखाया जाता था टू ड्रॉ पीपल क्राउड एंड ऑल. तो उन्होंने उसका जो एक पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल जो कंटेंट है उसके बारे में बहुत सारा इंस्पिरेशन अन्ना भाऊ से लिया. So even after 70s, 80s, you can speak to Sambhaji and he would tell you, you know, if they start with Anna Bhau songs, people would gather, you know. So उन्होंने not exactly लोकनाट्य फॉर्म, लेकिन अपनों को जो कहानी बतानी है उसको सॉन्ग के दायरे से शुरू करना, और बड़े बड़े जब मार्क्स से लेके लेनिन से लेके यहाँ के जो लेफ्ट मूवमेंट के जो लीडर्स है उनको वंदन करके वो आके जाएंगे. यार अपने अपने बहुत सारे शेड्स भी लेफ्ट मूवमेंट में, सोशलिस्टों के मूवमेंट में आए, तो वो अपने अपने जो भी उनके रिफॉर्मर्स थे उनको वंदन करके आगे जाते थे, बट दे वर नॉट गोइंग बैक टू द माइथोलॉजी एंड ऑल दैट. So there were direct and indirect influences on the street play also, and how to gather people, and so they do same thing. If they get an opportunity in a village, they can have a temporary stage
they do it there also. They are not constricted over there. Only जैसे ग्रुप्स लाइक जन्म जो है जननाट्य मंच, वो प्रोसेनियम भी किए और ये भी किए, और उसका एक मॉडर्न आविष्कार भी आया, जैसे सुनील शानबाग जो है कॉटन 56, या तो जो अपना शिवाजी अंडरग्राउंड जो है संभाजी भगत का, वो एक मॉडर्न फॉर्म है लोकनाट्य का मेरे हिसाब से, उसकी भी चर्चा हमने की है. तो नॉट ओनली स्ट्रीट प्लेस, दिस मॉडर्न थिएटर एक्सपेरिमेंट, you can see in Cotton 56 there are all instruments on the stage, nothing is being played from the wings, you know. So everything is there. What they used to do, they were with their instruments in their hands or shoulder पे, तो वो दिखाई दे रहा है. तो वैसे ही आज ढपली दिखेगी उनके हाथ में, इसी तरह से किया जाता है. But there is of course ideological base to it. It's not only, street play is also that which is talking about people's problems and propagating about that, and still they can be artistic. थैंक यू. एक रामू रामनाथ का सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल लेता हूँ, क्योंकि ये आपने जो बताई बातें उसके बारे में मुझे लगता है कि वो पथनाट्य के बाद हाल के दिनों में मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया 2-4 साल पहले कि जैसे ग्राम दैवत की पूजा होती है उस समय तमाशा बुलाया जाता है, वैसे अभी अंबेडकर की जयंती जब रहती है तभी जो अंबेडकरी जलसे करने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाता है. मुंबई में बहुत सारे झोपड़पट्टी या स्लम एरिया में संविधान के बारे में उसकी पढ़ाई करना, उसके बारे में भी लोग गीत गाते हैं. तो उसको भी मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है, ये मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ कि पथनाट्य का, तो उसका अलग फॉर्म जा सकता है. तो उसके बारे में अगर आप कमेंट करें, क्योंकि आपने साठे, कौन साठे, माड़ी फाटे और संभाजी की भी इंटरव्यू उसमें की है, तो उसके बारे में उनकी आप राय बता सकते हैं उसकी. नहीं नहीं, तो उनका जो भी जर्नी है उसमें भी चेंज आते रहता है. तो what Sambhaji Bhagat thinks today, he started his plays in 78, now he is doing Manuskichi Shala. So things change, you know, because the situation is also changing. There are lots of other things, you know, which are, and so to go to people, you know, they change in their forms also. Like Sachin and Sheetal, they are also doing, you know, what are the main contradictions. They have their views now, which were there in 2000 में, आज नहीं है, वो थोड़े से अलग तरीके से उसको देखते हैं. लेकिन they also think that we are taking this legacy ahead. उनका जो प्रभाव था उतना तो प्रभाव आज नहीं हो सकता है. But in a way, we are inspired by Anna Bosati and IPTA, of course. You know, all those groups who are of progressive views, they of course say कि this is all legacy. रामू का एक सवाल आया है, वो आपके लिए और मेरे लिए. आप पहले उसका जवाब दीजिए, फिर बाद में बोलता हूँ. One of the things I had heard was about robust network of 650 shakhas or centers across the Maharashtra for Loknatya shows. My question is, Ramu Ramanathan's question is, what happened to the network? ये मुझे नहीं मालूम ये आपको कहाँ से मिला, रामू रामनाथन को 650 नेटवर्क. ऐसा कुछ बिल्कुल नेटवर्क, इतना टाइट नेटवर्क कभी होता तो आज तो लोकनाट्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था. ऐसा कोई बहुत ही लूज नेटवर्क था. And now also I can see after discussing with people, more than party, those were the mass organizations, you know, which were helping these Lokanatya people. And now also street play को भी अगर थ्राइव होना है तो उसको mass organizations की जरूरत होती है rather than the party, because the party doesn't come in direct contact with the people. The mass organizations organize it, you know, and there were no such pakka organizations. I have spoken to so many people. There was no pakka network. It was just people's enthusiasm that these people are talking our language. See, the language was major this thing of Annabhau Sathe. He was talking not about his problems but their lives also. Take any of his songs, because they connect with their daily life, you know. That's why people were thrilled that time. It's not only about their problems and all. And Annabhau's language, you know, he knew terminology of the textile workers. He knew terminology of the rural people, land laborers and this thing, and he was using in his
songs in his Lokanatya, you know, that's why that was a major thing in his work. Rather than network, this was a पूरा जो ये खींच थी ना वो उसकी थी, तो लोग तो enthusiastically पूरा गांव उसमें आ जाता है. आज भी आप कुछ करो तो पूरा गांव जम ही जाता है, because there are hardly you may talk about TV and all these things, but when there are live shows, people gather automatically. You don't have to do much publicity in the village or even at a district place. Now also we can see that. I hope Ramu got his answer to his question. और मेरा भी उन्होंने नाम लिया तो मैं कुछ ऐड करता हूँ कि जो मिलिंद जी ने बताया कि नेटवर्क के बारे में, तो वो नेटवर्क हर वक्त मुझे, मतलब मैं 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बदलता रहता है और नए नए लोग आते हैं और उनका खुद का नेटवर्क बना होता है. जैसे जयंती के प्रोग्राम पहले वो इस तरह से नहीं होते थे जिस तरह से पिछले 4-5 साल में होते हैं, और वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, क्योंकि अंबेडकर जयंती हो या बुद्ध जयंती हो, तो उस वक्त जिन ट्रुप या जिन गांव में या जिन नुक्कड़ पे तमाशा बुलाया जाता था, उस नुक्कड़ पे आज संभाजी को बुलाते हैं या शीतल को बुलाते हैं या सचिन को बुलाते हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं महाराष्ट्र में, और नई पीढ़ी इसमें आ रही है तो उनको बुलाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क फिक्स नेटवर्क नहीं है, या बदलता रहता है, ऐसा मुझे लगता है. जो आपने मुझे सवाल पूछा उसका यही आंसर मैं दे सकता हूँ. रणवीर जी. हाँ मिलन जी, जब तक ऑडियंस से और कोई क्वेश्चन आता है, आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस मेंबर्स, अगर आपके पास सवाल है तो क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें डाल दें. रणवीर जी, मुझे पता नहीं था कि मुझे उसको सवाल को लेना है कि नहीं. आपका नहीं, आपने अच्छा किया, बहुत दिखाई दिया तो मुझे लगा कि ये लोग नहीं, कोई बात नहीं, चला. एंड व्हेन रामू इतना बड़ा थिएटर पर पूछ रहा है तो जवाब देना ही पड़ता है. So Milan ji, I wanted to ask you a bit, until our audience, if there are questions, I wanted to ask you one question about the difficulties, the challenges that you might have faced while researching the area. एक तो इस बात का ये कि it's ethnographic, and the language you talked about, that Anna Bhausati understood the language of the peasants, understood the language of the common people. So when one is converting the research into a documentary, the feedback, the kind of knowledge bank that is out there in the public, it doesn't necessarily adhere to a conventional established grammar of a script, or after that to a documentary film, right? So usme jo challenges aaye, what are the challenges that you encountered during the field work and while converting that ethnographic work into your script? And added to that, what are the challenges that you foresee while converting this material into a documentary? Because lok नाट्य का या जो भी कोई भी लोक कला, उसका बहुत बड़ा एक एरिया होता है, ये बहुत विस्तार होता है. So to condense it in a documentary form, how do you come to terms with the challenges, and what are the ways, for our audience and for us as well, in which one could extract a documentary film out of a large corpus of the material and then say that, okay, this is one of the attempts to actually talk about Lok Natya. True. In fact, it's a very painful this thing experience, and at the same time enjoyable also. Initially, I was just going into darkness. Older the people, they talk more, लेकिन तुम्हारे काम की बात बहुत कम होती है. So you have to have a lot of patience, So you spend a whole day with that person, he's talking and talking and talking for 5-6 hours, और उसके बाद में आप चाय पीते हो तो सोचते हो कि क्या हाथ लगा, ये तो कुछ दूसरी स्टोरी बता रहे, काम की बात ही नहीं बता रहे. So you have to wait, and then you automatically, after having 3-4 experiences, you develop some technique, how to bring them on the topic, उनको किसमें ये है, उनको कौन सी चीज उसमें, उसको लाइन पे लाना बहुत जल्दी और उनको बोलते करना. Then the sort of results you get ना, कि this aspect nobody said, but this person said. So note down करो कि इस
उसको नेक्स्ट टाइम अगर जब ये आना है ऑडियो रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर के साथ, तो उसको इस बात से शुरू करने को बोलना है। और बाकी तो कितना बात करना है वो चाहिए तो हम शूट करते रहेंगे, लेकिन वो चीज़ है कि उसमें वो कंफर्टेबल है। तो दैट इज वन एक्सपीरियंस। एंड देन आई वॉज जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। और जो पहला राउंड जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है बट देन वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू गेट, जैसे एकेडमिक कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, बहुत सारा कुछ सरप्राइजिंग भी रहता है, पहले तुमने सोचा हुआ नहीं रहता है, किसी किताब में कुछ ये रहता है। जैसे सुधनवा की किताब मैंने पढ़ी, नॉट टू डिस्क्रेडिट एनीथिंग, और उसमें वो जननाट्य मंच और उनकी सब देखी, लेकिन अर्जुन घोष जो है वो जेएनयू का जो है उसने उनके इतिहास पर लिखी, तो वो पॉलिटिकल थिएटर करके ही फॉलो किया, तो वो एक ओवरव्यू लिया। देन आई गॉट माई मैन अरे मैं बोला कितने सारी चीजें अभी खुल गई बिल्कुल, बिकॉज ही हैज एड्रेस दोस क्वेश्चंस much before so then I had telephonic dialogue with him, then met him and had interview also and video shoot किया। तो जैसे किताबों के थ्रू और लोगों के साथ बात करते हुए भी थोड़ा सॉर्ट आउट करते करते जाने के बाद फिर सर लगता है चलो सेकंड स्टेज पे पहुंच गए। देन आई फॉर 8 days आई केप्ट एंड सैट ऑन द टेबल, और हर एक के लिए जो भी शॉर्ट लिस्ट किए थे उनके लिए क्वेश्चन बनाए, और वो मैं इतने आसानी से, आप हंस रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने में वो इतना पेनफुल जॉब था, क्योंकि अपना अगर सवाल बराबर नहीं फॉर्मुलेट किया तो जवाब तुमको उस तरह से नहीं मिलने वाला। तो आई यूज्ड टू जस्ट फॉर्मुलेट 10 क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट करता था कम से कम 3 सवालों का फर्स्ट क्लास जवाब दे, तो वैसे वो वर्कआउट हो गया। तो दिस वाज द मेथड दैट वन जस्ट वो डेवलप करता है अपने तरीके से, उसको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बट आई थिंक इससे मैं इसके बारे में थोड़ा आपसे और बात करूंगा। अरुंधति एक सवाल पूछना चाह रही। हाँ मिलिंद, ये मुझे पूछना था कि ऐसे जो काम आप कर रहे हैं इसका तो एक फिल्म बनेगा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगा, लेकिन जो अक्सर होता है कि हमारे बच्चों तक कुछ हिस्ट्रीज नहीं पहुंचती, ये इतिहास एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं पहुंचती, और पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि हम अगर पावर स्ट्रक्चर देखें वो कभी नहीं जाएगा, इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा बाहर से। तो मैं ये सोचा था आपका जो ये मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, इसका फ्यूचर में, इस प्रोजेक्ट के अंदर शायद नहीं, लेकिन इसका फ्यूचर में आप ऐसा देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए अन्ना भाव के लाइफ और उनके वर्क्स के थ्रू स्टोरी बुक्स आए, या पॉडकास्ट हो, या कुछ छोटे छोटे नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसा या स्टेज वाले नाटक बन सके, जो आपका जो मटेरियल आप कलेक्ट हो रहा है, इससे आपका फिल्म तो बनेगा, लेकिन ऐसा मटेरियल भी रहेगा उसमें जो दूसरे क्रिएटिव लोग जो लिखते हैं, जो गाना बनाते हैं या जो थिएटर बनाते हैं, वो उसको स्पेशली बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा। क्योंकि हमें वो सब कहानियां, वो सब इतिहास ज्यादा याद रहता है जो हम छोटे टाइम पे देखते हैं, सीखते हैं। वो स्कूल के बाहर हो तो और भी अच्छा, वो ज्यादा याद रहता है, स्कूल के अंदर जो पढ़ाता है उससे ज्यादा। तो आपको लगता है ऐसा पॉसिबिलिटीज होगा ये इस मटेरियल के साथ? नॉट ओनली अबाउट अन्ना भाऊ, नाउ आई एम ऑलरेडी 65। ये प्रोजेक्ट करते वक्त भी मुझे लगा था आई शुड हैव बीन 25, तो मैं तो और जोर शोर से इसको करता था, बट आई विल जस्ट टेल यू, when I was doing theater for 8-9 years during 86 to 94, एक चैलेंज मुझे ऐसे आया कि आपको बाल नाट्य करना है और वो ब्लाइंड लोगों के लिए करना है, तो मैं ऐसे ही कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को ये किया, और मुझे ये करना था कि साउंड बेस पूरा मुझे करना है, तो पूरा उनका 8 दिन वर्कशॉप लिया, उनको बहुत सारा चिल्लम चिल्ली कराने लगा, उनको एक ऐसे प्रसंग देता था, और चलो आज तुम घर पे लेट खेल के आ गए और होमवर्क रह गया है और क्या करेंगे, तो दिस सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स, तो उनको क्या वो ईज में आ गए। एक बार ईज में आने के बाद फिर वो ब्लाइंड लोगों के जो किया, तो वो मेरा सर खा रहे थे, ये ब्लाइंड लोग देख रहे तो हम कुछ भी ऐसा भी नाचेंगे। बोले नाचो ना, देखो ना नाचना होता है क्या। But once they went on this thing blind school and they saw कि within 10 seconds, because उसमें कुछ मैंने ऐसे gimmicks किए थे, people will shout something or something, explain something like this, and there will be some whoosh करके,
So within 15 seconds, they saw these people are clapping and they're responding. And then they didn't do a single thing out of the script, you know. Otherwise, जब प्रैक्टिस होती थी ना, कुछ भी मजाकबाजी करते थे, you know, जैसे बोला वैसे कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन पहला स्टेज पे they were so thrilled, they were crying, you know, कि हमारे सब ब्राइड लोग हमको उठा रहे सर पे, like. So this sort of course there are there. So if I were in 25, I would have really come to Bangalore and joined your institute. There are lots of things, and that book has been published also. That ये वो जो play है वैसे. तो अन्ना वो के इसमें भी काफी सारे लोग अभी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जो अभी तुम 10 घंटों का कुछ किए तो अभी ये इसमें 15 मिनट का यूज करोगे, बाकी चीजों का हमको किताब तो दो. तो वो जब शुरू हो गया है, but we can work out something, and very seriously we can work out. Using animation and graphics and मिलन जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी ये स्क्रिप्ट स्टेज पे है. मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा वो शायद अभी रेलेवेंट ना हो, वो फ्यूचर के लिए है, बट थोड़ा सा उसमें स्क्रिप्ट के रेलेवेंट भी है. यू नो, अबाउट योर ओन पॉलिटिक्स एज अ फिल्म मेकर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द कैमरा, कि क्या कैमरा में आता है, व्हाट गेट्स excluded, क्योंकि कैमरा इज अ पावर टूल. ये पावर टूल है, एंड पीपल स्टार्ट, मेरे सामने आप कैमरा रख दो, आई विल स्टार्ट टोटली, यू नो, रिएक्टिंग वेरी डिफरेंटली हाउ आई रिएक्ट इन नॉर्मल लाइफ, एंड इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल ह्यूमन नेचर. So I'm asking you a question that vis-a-vis Anna Bharsate and the politics of the Loknatya, which springs from a need for an artistic form to be turned into a tool for political and cultural activism. So as a filmmaker, how do you deal with these constraints, the shortcomings of filmmaking, the shortcomings of turning something which was more verbal than textual and which is a lived experience, and then trying to, you know, put it into a concrete form of the script, and later on, you know, putting it into a documentary. So what are the political, or what are the, you know, compromises in general, if I may not use the word political, that a filmmaker has to strike or negotiate vis-a-vis his or her subject, and in particular vis-a-vis Anna Bharsate and their own words? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया जाते जाते. मेरा काम ही वही है. नहीं, बात ये है कि, you know, when you are in as a theater person, cultural movement में और political movement से काफी जुड़े हुए रहते हैं, कि then you keep on communicating with people also a lot. So here also, for example, you know, I was knowing कि this person's का political leanings क्या है, इसका ये कौन से शेड में आता है, कौन सी भूमिका लेता है, तो उसका पढ़े बिना या जानकारी लिए बिना हम तो जाते ही नहीं है. But only thing is that, you know, many people used to, अरे वो कुछ बोलेगा नहीं, वो बहुत अखरू है, वो ऐसा है वैसा. बट वो फर्स्ट राउंड जो होता है वो इतना महत्व का रहता है, यू नो. इफ यू कैन क्लिक, यू नो, क्लिक हो गया ना, इनफॉर्मल, उनके साथ मैं ऐसे बात ही नहीं, अन्ना बहू के बारे में बात ही नहीं करूंगा, मैं दुनिया भर की बातें करना शुरू कर दूंगा, यू नो, टू मेक हिम कंफर्टेबल. तो उसका अखरूपन होगा वो निकल जाता है. तो फर्स्ट राउंड इतना महत्व का रहता है, यू नो, he becomes very informal with you, and that is very very important stage, you know. तो वो even if you actually video shoot उसका इंटरव्यू 3 महीने के बाद भी करे ना, तो he starts with चाय with you, नो. तो उनका जो टेंशन जो होता है वो कम हो जाता है कि इस आदमी ने अपने को समझ लिया है, और मुझे जितनी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही उसको समझ में आ गई है, और मेरा जो स्कोप है इसको समझ में आ गया है, और उसको कॉन्फिडेंस लगता है कि इस स्कोप के बाहर जाके कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं मुझे पूछने वाला है. तो उसको क्वेश्चनर होने के बाद तो वो बहुत रिलैक्स हो जाता था. तो उसको रिलैक्स करने का भाई एक तरीका टेक्निक में आता है. तो कॉम्प्रोमाइजेस मुझे बहुत कम करने पड़े, और कुछ लोग मुझे मालूम थे कि ये जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बोलने वाले, फिर भी उनको मैंने एक लिबरल ये दिया है कि आप ये भी बोलिए, ये भी शायद हो सकता है जो मेरे दिमाग में नहीं है और मैं नहीं उससे एग्री करता, फिर भी दिस इज ऑल्सो ए प्लेटफॉर्म, ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म वेयर यू कैन स्पीक व्हाट यू विश. तो थोड़ा सा लिबरल माइंड भी काम करता है. अच्छा, 2 क्वेश्चन है ऑडियंस से. ये फेसबुक से आया है कमेंट त्रिशा गुप्ता का. उन्होंने 2 पार्ट्स में पूछा है. थैंक्स फॉर दिस सुपर प्रोजेक्ट. 2 questions which might be very basic. Was Loknatya equally popular in rural and urban Maharashtra?
how did the plays bridge the gap between these audiences, or were there different kinds of plays performed for different audiences? इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, पहले आप ये इसका जवाब दे दें तो मैं फिर दूसरा भी पढ़ूंगा। नहीं, as I said initially कि जो ऐसा जो लोकनाट्य है वो पनपता कहाँ पे है, तो आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल हब था बॉम्बे सिटी, और तभी यूनियंस काफी एक्टिव थे। तो अगर यूनियन नहीं होती तो ये आइसोलेशन में कुछ तो होता था अन्नाभो का, बट बिकॉज ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन दे कुड गेट अपॉर्चुनिटी, और उनके साथ उनका कम्युनिकेशन होने के कारण उनकी टर्मिनोलॉजी भी उन्होंने पकड़ ली थी। तो वो टेक्सटाइल मिल में जो भी चीजें होगी उसको वो मेटाफर में बदल देते थे। Now if they were so brilliant artists, all these three, Amar Sheikh and everybody, they were knowing if you use this terminology in villages, it's not going to, and they were going to say something about the farmers issues over there. मनी लेंडर्स का प्रॉब्लम है, दूसरे अलग अलग प्रॉब्लम है, जो इलेक्शन में जो सामने वाला पार्टी है वो कि उसका कैरेक्टर क्या है उसके बारे में बोलने वाले जो थे। तो एक इंटरव्यू भी हमारे स्क्रिप्ट में अभी डॉक्यूमेंट्री में ऑलरेडी शूट हुआ है। तो वो 93 बरस के इंसान है जो फार्मर थे, और वो बम्बई कुछ दिनों के लिए गए थे, एंड ही सॉ दैट प्लेस समवेयर एंड ही वाज सो चार्ज्ड and he came there, then he organized something, he called that troop over there, and he has said, कि I was so charged कि ये तो अजीब है, ये लोग पागल हो जाते हैं ये अपनी। तो मैंने उनको कहा था कि ये हमारे फार्मर्स के बारे में क्या आप लेके आएंगे। then they had come about some issues and all that which were already there, and then he said कि first movement in Maharashtra, वहाँ पे ये होगी, and he has said, rather than those speeches of some leaders or something, this play used to make a lot of this thing. So there were, of course, because of the party organizations, trade union organizations, किसान सभा, उनके वैसे ही कम्युनिकेशन थे एक दूसरे के, और इसलिए उनको प्लेटफॉर्म भी मिल रहे थे। इनका तो थिन एयर में तो नहीं होती बातें। हाँ, इनका एडिट क्वेश्चन है जो इसका दूसरा पार्ट है। You spoke about of the archival gap, the lack of Akashvani recordings. Did you eventually find any of the Loknatya scripts? Of course. Fortunately, that happened. And महाराष्ट्र राज्य संस्कृति मंडल जो है उन्होंने कुछ लोग कमीशन किए, और 13 में से 10 लोकनाट्य जो है उसकी लिखित कॉपी उन्होंने मिलवाई, और पूरा सारा उनका लिटरेचर भी सब ये हो गया। और 68 में उनके जो भाई थे जो ऑल अलोंग विथ हिम, उन्होंने उनकी बायोग्राफी जो है वो पुणे के ही लोकल एक एक्टिविस्ट है, दलित एक्टिविस्ट और पब्लिशर भी है, विलास वाघ करके, उन्होंने वो उनका पहला बायोग्राफी पब्लिश किया। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज टू when one Sunday was fixed for his interview, just 2 days before that he died of corona. All of a sudden he was admitted, and such shocks also I experienced this. Some people went into dementia, this thing. So I just ran around with my camera, although it was not envisaged कि this project would be like that. तो ऐसे सारे चीजें हैं। तो हम 4 मिनट अपने टाइम से ऊपर चले गए। अगर संदेश जी, अगर आपके पास कोई और प्रश्न पूछना आप चाहें तो ठीक है, वरना हम आज की शाम को यहीं पे विराम। Sandesh, any last comments that you want to make on this project, or what you would like to see? क्या आप देखना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बाहर से बाहर आके? इस बहाने, ये जो अण्णाभाऊ साठे के बहाने उन्होंने बहुत सारे जो इंटरव्यू लिए हैं उसकी अगर फिल्म बन गई और परफॉर्मेंस, कुछ लोगों के परफॉर्मेंस, जैसे साठे या शीतल साठे या संभाजी, उनके लाइव परफॉर्मेंस लोगों के साथ, क्योंकि जो सवाल जो पूछा था थोड़ी देर पहले कि परफॉर्मेंस होते हैं महाराष्ट्र में कहाँ पे होते हैं, तो मैं एक आपको बताता हूँ, 2-3 साल पहले और एक ग्रांट मुझे IFN दी थी 15 साल के बाद तमाशा रिविजिट करने की। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो इस तरह के ऑडियंस बहुत है, पैट्रनेज बहुत है, लेकिन उनको 2 तरीके से लोग हैं जो जयंती के प्रोग्राम करते हैं, इसमें परिवर्तन के विचार उसमें आता है, और दूसरा जो है वो फुल्ली एंटरटेनमेंट फॉर्मर, दो पूरी गैप उसमें आ गई है।
और नए नए गाने बन रहे हैं, नए नए विचार आ रहे हैं, तो उसको उसी समय अगर डॉक्यूमेंट उन्होंने किया तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। मुझे मौका मिला तो मैं उनको मदद करूंगा। एक और सवाल आया है ऑडियंस की तरफ से। रमनी ने पूछा है कि मिलन जी, अगर आप अपनी पसंद का थोड़ा सा कोई किसी गाने के अंश बताएं जो यू नो आप अपनी which you are planning to publish in your script as a book, तो अगर आप उसमें से थोड़ा सा कुछ पढ़ के बताएं। और संदेश जी, आपने भी गाने का जिक्र किया, तो अगर आप भी वहां पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें जब तक मिलन जी अपना मटेरियल देख लेंगे। माय गुडनेस रमणी, ये तुम्हारी बचपन से आदत है कुछ तो अड़चन में डालने की। रमणी की फर्स्ट फिल्म के लिए मैं उसके यूनिट में था। वेरी फर्स्ट फिल्म व्हेन ही पास्ड आउट ऑफ FTI। what goes around comes around। या रमनी शायद फेसबुक पे है, यहाँ पे तो हाँ, नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आई थिंक ही इज ऑन फेसबुक। This is the Tambda Futla, means it's a morning, but it's a metaphor, you know, means new morning for those all revolutionary people who want to change the system and everything. So that is this thing, but at the same time it is talking about a farmer and his wife, you know. So he's asking his wife, just get up, we have to this thing. तांबड फुटल कुठ सजणे गाडी दुपायाची येळ झाली। यानी बुलक उनको जोड़ देते। बघ देवाच्या वाटेवर कुठ कुठ सैतानी सत्तेची काट कुठ। बघ देवाच्या वाटेवर कुठ कुठ सैतानी सत्तेची काट कुठ। व्हाट इज सैतानी सत्ता वी आर एक्सपिरियंसिंग नाउअडेज, सो I need not explain what it is. पायात आता पातूर रुतली गाडी दुपायाची येळ झाली। तांबड फुटल हे तांबड फुटल तांबड फुटल। This is the thing. थैंक यू मिलन, मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाते भी हैं। हाँ, तुम बुलाते नहीं, कब से बोल रहा हूँ बैंगलोर बुलाओ यार। आप कोरोना का कुछ करो, हम कल ही बुला लेंगे आपको। संदेश का हाथ ऊपर है। संदेश नहीं, मैं अच्छा मेरा हाथ ऊपर आया नहीं, मैं गलती से हो गया, लेकिन चाहे तो अगर समय है तो मैं बोल दूंगा। हाँ। मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा पॉइंट बताना है जो शायद लोगों को अच्छा भी लगे कि अण्णाभाऊ साठे की शायरी जो है वो, और उसके पहले अगर एक फेमस शायर था जिसका शायद बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया होगा, कि पट्टे बापूराव नाम के शायर थे, और उन्होंने मुंबई के ऊपर एक लावनी की थी, और उसमें वो लिखते हैं कि मुंबई नगरी बड़ी बाका जैसे सोने की लंका। और उनका उस नजरिया था कि सोने की लंका है, और जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और सब उनकी दुनिया है। लेकिन अण्णाभाऊ जब उस मुंबई में गए तो उनको एकदम पूरी उल्टी बाजू उनको दिखाई दी। उन्होंने अपने मुंबई के लावनी में कहा है कि मुंबई की लावनी की दूसरी अप्रोच से उन्होंने देखा। मुंबई की मलबार हिल को उन्होंने इंद्रपुरी कहा, और वहां पे कुबेरों की बस्ती है, वहां सुखों का वास है, बहुत सारे सुख वहां पे है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन उस समय नायगांव, धारावी या माटुंगा रोड जहाँ पे लेबर कैंप था, वहां पे जिनको रोजगार नहीं है उनके लड़के कीचड़ में खेलते हैं। और गोलपीठा या फोरास रोड, जो गोलपीठा नाम का बहुत ही अच्छा बुक है, पोएम बुक, तो गोलपीठा और फोरास रोड पर अनेक महिला पेट भरने के लिए अपने शरीर बेचने की नौबत उनको आती है। तो मुझे ये लगता है कि उनको गा के बोलता हूँ। हाँ प्लीज। वो इनइक्वालिटी जो है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो है, और बॉम्बे के जो दो चेहरे हैं, वो 2 लाइनें में सबको समझ जाएंगे। इतने तो मराठी को भी आती है। प्लीज। ओ मुंबईत उंचावरी मलबार हिल इंद्रपुरी, मुंबईत उंचावरी मलबार हिल इंद्रपुरी, कुबेराची वस्ती तिथे सुख भोगती, कुबेराची वस्ती तिथे सुख भोगती, अन परळारत राहणारे रात्रंदिन राबणारे
मिळेल ते खाऊन घाम गाळतील नारी ग नारी ग नारी ग जी जी र जी. ऐसा है जो जो बम्बे के चेहरे जो आज ताकत है. कोई बात. चलिए बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मजा आपका। किया यार. बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एनिमेटेड डिस्कशन। संदेश जी, मिलन जी, बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा एनिमेटेड डिस्कशन रहा। थैंक यू वेरी मच संदेश जी फॉर द पॉइंटेड क्वेश्चंस यू आस्क्ड एंड थैंक यू। और रमनी का भी बेहद शुक्रिया कि इन्होंने लास्ट में हमें बता दिया कि मिलन गाते भी बहुत अच्छा है, तो अब पकड़े गए हैं, तो अगली बार और आज की शाम को यहीं पे हम विराम देते हैं और आप सभी लोगों का, खासकर हमारे दर्शकों का जो हमें सोनिया देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी यहाँ से गया नहीं अंत तक। आप लोगों का वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग विद अस थ्रूआउट दिस इवनिंग एंड वी विल बी बैक as always next month by the end of March with another project which is going to be an archival project by Bhavin Shukla, who worked towards curating an exhibition called Delhi Dialogues that explored the relationship between people and the built environment in Delhi. ये मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा and we will convey the dates to you via invitations through email. So please check your email. और तब तक के लिए Aru, you want to say anything? Just that follow us on Facebook, Instagram, because all these information will be up there. इसका recording जो आज हुआ है वो भी हम लोग YouTube में डालेंगे, तो आप आपके friends सबसे share कर सकते हैं। हाँ, और जस्ट फेसबुक पे अगर आप फॉलो करेंगे, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह हम हैं, तो जस्ट फॉलो करते जाइए और ये न्यूज़ आपको मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much and until March last week, goodbye and take care.